Yes, good afternoon to all of you students. Myself, Vijay, and I'm your science teacher. We are continuing with the topic of your science book, chapter number 12, friction. And in this chapter, today we are going to discuss the topic. We are going to discuss the topic that is fluid friction. As you can see on the screen, a PDF is shared with you. A PDF is shared with you. You can see the screen. This is the topic fluid friction. ये हमारा आज का टॉपिक है. इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. Now, first of all, you should know what is the meaning of fluid. If you know the meaning of fluid, then you will able to know be able to know the meaning of fluid friction. Now, the meaning of fluid is gases and liquids. गैसेस और लिक्विड्स को कंबाइंड फॉर्म में हम एक टर्म से कहते हैं फ्लूइड. सो इफ द फ्रिक्शन इज अप्लाइड इन द गैसेस और if the friction is applied in the liquid, then that friction is especially called as fluid friction, and this friction is also given a new term that is known as drag. हम इसी को drag बोलते हैं और इसी को fluid friction बोलते हैं. Fluid friction and drag are one and the same thing. Fluid friction and drag are one and the same thing. Yes, so fluid friction we will try to discuss. As you can see, you know that air, I'm starting the reading from here, as you can see. Yes, you know that air is very light and thin, yet it exerts frictional force on objects moving through it. Similarly, water and other liquids exert force of friction when objects move through them. In science, the common name of gases and liquids is fluids. Here you can note it down. In science, the common name of gases and liquids, together जो gases और liquids हैं, together उनको एक साथ हम क्या नाम से जानते हैं? Fluids नाम से जानते हैं. So we can say that fluid exert the force of friction on object in motion through them. The frictional force exerted by the fluid is called drag. तब आप सबने अपनी लाइफ में कभी न कभी ये ड्रैग जरूर महसूस किया होगा, जरूर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा. When you are riding the bicycle, and the air is in the air or the wind is blowing in the opposite direction. When the wind is blowing in the opposite direction, at that time there is a friction force between you and air. तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो और कुछ नहीं, उसी को हम ड्रैग बोलते हैं. उसी को हम क्या बोलेंगे? ड्रैग बोलेंगे. When you are swimming in a swimming pool, when you are swimming in a swimming pool, there is a friction force working between your body and water. That is drag. That is we will say fluid friction. इसको हम fluid friction कह सकते हैं, drag कह सकते हैं. When the aeroplane is moving in the air, when the aeroplane is taking the flight, there is a lots and lots of friction between aeroplane and the air. That is drag, that is frictional force. आपने देखे होंगे कई बार meteors और meteorites, when they are entering into the Earth's atmosphere, जो meteors हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बाहर से एंटर करते हैं, तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस के कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है ना. तो that is also a drag, that is also the fluid friction, or we can say drag. और फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो जो मीटियोर्स होते हैं, they catches fire. तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस द हीट. फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है. So that all examples which I concluded are the examples of drag. Drag is also known as fluid friction. हम drag कहें या fluid friction कहें,
एक ही बात है ना, one and the same thing, there is no difference between them. Now all of you see, the frictional force on an object in fluid depends on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depends on the shape of the object and the nature of the fluid. अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का डिपेंडेंस बताया हुआ है कि फ्रिक्शन फोर्स किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे या फिर कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे जिससे फ्रिक्शन फोर्स या ड्रैग डिपेंड करेगा. First of all, the frictional force, we'll say the fluid friction or the drag will directly depend on the speed of the object moving through it. है ना, जितने ज्यादा स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा फ्लूइड्स में, उतना ही ज्यादा उस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, उतना ही ज्यादा ड्रैग उस पर अप्लाई होगा. More the speed of that particular object moving in the air or moving in the liquid, more the drag is faced by that object. Similarly, जो drag होता है या फिर जो fluid friction है, वो depend करता है object की shape पर, and also on the nature of the fluid. Nature of the fluid में भी depend करेगा और object के shape पे भी depend करेगा. Do you know, I am asking a simple, very question, simple thought, all of you thinking about, why the shape of the aeroplane is like the bird? Why, can you see there some similarities between the shape of the aeroplane and the shape of the bird? Both, when they are both are flying in the air, due to that particular shape, due to that particular shape, they suffer very less फ्लूइड फ्रिक्शन. बहुत कम उनको ड्रैग या बहुत कम फ्रिक्शन उनको जो है फेस करना पड़ता है उस शेप की वजह से. तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ऑब्जेक्ट की शेप पर भी डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. इफ द फ्लूइड इज मोर डेंस, इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज वेरी हाई, more fluid friction will be applied, and if the density of the fluid is less friction force will be applied, है ना. तो fluid friction किस किस चीज में डिपेंड करता है? सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज स्पीड, the speed of the object moving through the fluid. If speed is more friction force or more drag will be there. Second is density of the fluid. Second is density of the fluid. If the fluid density is more friction force is applied. And if fluid की density कम है तो कम friction force apply होगा, कम जो है drag apply होगा. And third is the shape. Third is shape. शेप मीन्स अगर शेप जो है काफी जो है आई विल से नैरो है, शार्प है ना, जिसको हम बोलते हैं शार्प शेप है. शेप कैसी है? काफी शार्प है या फिर नैरो है, देन इट विल सफर वेरी लेस फ्रिक्शन और वेरी लेस ड्रैग इट विल सफर. बट इफ द शेप इज ब्लंट, है ना, काफी ब्लंट शेप है, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. More drag will be suffered or will be faced by the objects moving through the fluids. So all of you see, it is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize the friction. बहुत सिंपल सी बात है. जब आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि when you are riding the bicycle, when you are riding a bicycle or when you are riding any vehicle, if the air is flowing in the opposite direction, when the air is flowing in the opposite direction, at that time you have to apply large amount of energy to overcome that force. Yes or no? आपको साइकिल चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना उस टाइम.
क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स सामने से अप्लाई हो रहा है उसको आपको ओवरकम करना है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रैग। दैट इज नोन एज ड्रैग और दैट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो हम चाहते हैं कि जो हम एफर्ट लगा रहे हैं व्हीकल को या ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, एफर्ट कम हो, कम से कम एफर्ट हो। तो आप अपनी जो व्हीकल है, व्हीकल की शेप कैसी रखेंगे? अपने व्हीकल का शेप कैसा रखेंगे कि आपका जो फ्रिक्शन है कम से कम हो जाए? व्हाट विल बी द शेप सजेस्टेड बाय यू टू ओवरकम दैट फ्लूइड फ्रिक्शन? Have you seen some supercars? Just imagine some supercars in front of you. Supercars या सुपर बाइक्स को अपने सामने, अपने इमेजिन कीजिए आपके सामने, they are running. आप उनके शेप को आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए. If you will observe the shape of the supercars and super bikes, you will see that they are very narrow from the front and they are very broad from the back side. उनके जो आगे वाला जो हिस्सा है, जो फ्रंट साइड है, वो काफी नैरो रहेगी और जो बैकवर्ड वाला, जो बैक वाला हिस्सा है, वो काफी ब्रॉड रहता है, जिससे वो इजीली जो है अपने जो फ्रिक्शन को कम हो जाए. उस शेप के कारण, उस पर्टिकुलर शेप के कारण क्या हो गया? फ्रिक्शन कम हो गया. और ये जो पर्टिकुलर शेप जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है, दैट शेप इज नोन एज स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइनिंग. आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, आई विल रिपीट. ये जो शेप होता है जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसी शेप को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइनिंग. जो फ्रंट से एकदम नैरो है और बैक से एकदम जो है ब्रॉड रहता है. सुपर कार्स जो होती हैं, सुपर बाइक्स जो होती हैं, या फिर जो स्पीड बोट्स होती हैं, जो बोट बहुत ट्रेवल करती है स्पीड से वाटर के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर, रिवर्स के अंदर जो स्पीड से बोट ट्रेवल करती है, उनकी आगे से आप देख लो, उनकी जो शेप होता है काफी नैरो रहेगा. जिसके कारण क्या होता है, क्यों ऐसा रहता है? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. इसका रीजन होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कम से कम हो जाए, है ना? टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन फोर्स और टू मिनिमाइज द फ्लूइड फ्रिक्शन, और वी कैन से टू मिनिमाइज द ड्रैग which is applied on them. Yes. आगे देखिए बेटा, all of you see. We started from here. It is obvious that when object move through the fluid, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize the friction. So objects are given special shapes. ये जो special shape होता है, इसी shape को हम streamlining बोलते हैं. The special shape which is given to overcome the friction is known as, to minimize the energy, is known as streamlining. Where do you think scientists get hint for these special shapes? From nature, of course. Birds and fishes have to move about in fluids all the time. चाहे birds हो या fishes हो, उनको all the time they have to move in the fluids. तो वहीं से हमारे साइंटिस्ट आइडिया लेते हैं और फ्लूइड फ्रिक्शन को जो है कम करने के लिए इस तरह के शेप डिजाइन किए गए हैं. Their bodies must have evolved to shape which would make them lose less energy in overcoming friction. You read about these shapes in class 6. आप इस shape का class 6 में पढ़ चुके हैं. Look carefully at the shape of an aeroplane. Do you find any similarity in its shape and that of bird? In fact, all vehicles are designed to have shape which reduce the friction. जितने भी vehicles जो fluid में travel करते हैं, उन सभी के shape कहीं ना कहीं इसी डिजाइन से similar होता है, जिससे वो friction को overcome कर सकें, या फिर जो energy है उसका loss हो रहा है उसको minimize कर सकें, ना? इसी shape को, this shape is known as streamlining. This shape, special design
by which the drag or the field friction is minimized, that is known as streamlining. So with this we have completed the chapter. Some important points are there. Let's go through them once again. First point, friction opposes the relative motion between the two surfaces in contact. It acts on both the surfaces. जो friction force होता है हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है ना, और जो सरफेसेस रहते हैं कांटेक्ट के उसके कारण, टू सरफेसेस जो कांटेक्ट में होती है उनकी रफनेस के कारण या फिर उनके इरेगुलरिटी के कारण ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, एंड इट ऑलवेज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन. सेकेंड पॉइंट, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट. यस, फ्रिक्शन जो है बिल्कुल नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है. अगर सरफेस स्मूथ है, इरेगुलरिटीज उसमें कम है तो फ्रिक्शन कम होगा. एंड इफ द सरफेस इज रफ, इट हैव मोर इरेगुलरिटीज, देन द फ्रिक्शन इज मोर. थर्ड पॉइंट, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दोज सरफेसेस. सेम पॉइंट है, सेकंड और थर्ड पॉइंट एकदम सेम है. थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा और लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा स्मूथनेस होगी, मोर द स्मूथनेस इन द सरफेस, लेस द फ्रिक्शन इज देयर. नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर. फ्रिक्शन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि दो ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे को कितना हार्डली प्रेस किया है ना, बिकॉज जितना ज्यादा हार्डली प्रेस करेंगे इरेगुलरिटीज उतना स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को बाइंड करेंगी, और जितना स्ट्रॉन्गली इरेगुलरिटीज बाइंड करेंगी उनको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही ज्यादा अप्लाई होगा. सो मोर द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर अगेंस्ट ईच अदर, मोर द फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड. नेक्स्ट, static friction comes to play when we try to move an object at rest. तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होता है? जब ऑब्जेक्ट किसमें होता है? रेस्ट में होता है. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और उस पर आप फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में है, लेकिन उसको रेस्ट से आप मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं. उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन comes into play when the object is sliding over another, है ना. बहुत सिंपल सी बात है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड कर रहा हो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट पॉइंट ऑल ऑफ यू सी, sliding friction comes into play. Sliding friction is smaller than the static friction. Static friction की वैल्यू हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा होगी. आप एक ऑब्जेक्ट को पुश करो ना, ट्राई टू पुश एन ऑब्जेक्ट, शुरुआत में उसको मोशन में लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब वो एक बार स्लाइड होना शुरुआत हो गई तो उसके बाद में जो है स्लाइड कंटिन्यू करना इट इज नॉट डिफिकल्ट. सो ज्यादा किसकी वैल्यू होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से क्या होती है? ज्यादा होती है. इसीलिए ऑब्जेक्ट को एक बार शुरुआत में उसके मोशन को स्टार्ट करवाना दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन एक बार जब मोशन स्टार्ट हो गया, एक बार जब स्लाइड होना स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद में जो है इजीली कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर सकता है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होती है. नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ आवर एक्टिविटीज. बहुत जरूरी है, फ्रिक्शन बहुत जरूरी नेसेसरी होता है. फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ. अगर हम सरफेस को रफ कर दें तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड. The sole of the shoe and the tire of the vehicles are treaded to increase friction. बिल्कुल सही है. ये these are the methods to increase the friction. Friction is sometimes undesirable.
Friction can be reduced by using the lubricants. When one body rolls over another body, rolling friction comes into play. And when one body is rolling over the other body, friction comes into play. रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, कम होती है ना. इसीलिए तो जो सूटकेसेस होते हैं, जो लगेजेस होते हैं, उनके टायर्स क्यों आते हैं, क्योंकि रोलिंग जो है, रोलिंग थोड़ा इजी होता है. रोलिंग इजी क्यों होता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कम है. तो सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है बच्चों, ध्यान देंगे, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज्यादा कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन. देन आफ्टर वी कैन से देन आफ्टर स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की. देन आफ्टर स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन आफ्टर रोलिंग फ्रिक्शन. सबसे लास्ट में किसकी वैल्यू होगी, रोलिंग फ्रिक्शन. तो सबसे इजी क्या होगा, सबसे इजी होगा रोल करना. किसी ऑब्जेक्ट को रोल करवाना सबसे इजी होगा. क्यों, क्योंकि उस रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी उससे ज्यादा होगी. और सबसे मुश्किल होगा जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तब उसको मोशन करवाना, मोशन को स्टार्ट करवाना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सबसे ज्यादा होता है. Last 2 points are left. In many machines, friction is reduced by using the ball bearings. हम ball bearings को use करके friction को कम कर सकते हैं. And fluid friction can be minimized by giving suitable shapes to bodies moving in fluids, है ना. तो shape particular देकर fluid friction को कम कर सकते हैं. So this is it. This is chapter number 12. We have completed with the chapter number 12. I hope all of you understood the chapter very well. Yes. Thank you.